اب آپ جو کہتے ہیں نا کہ آیت مبالغہ کی تشریح نہیں آتی، انہیں تفسیر نہیں آتی، ہم آپ کو بتاتے ہیں مرزا صاحب کہ آیت مبالغہ کی تفسیر کیا ہے، اور آیت مبالغہ سے اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ آیت مبالغہ قرآن سے پڑھ کر اس کی تشریح صحیح مسلم سے بیان کر دیں۔ سر ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ آیت مبالغہ قرآن سے پڑھ کے اس کی تشریح صحیح مسلم سے بیان کر سکیں۔ مرزا صاحب آج ہمارا حوصلہ چیک کریں ذرا، بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، ہم آپ کے سامنے بھی بیان کر سکتے ہیں اور یہاں بھی بیان کرنے والے ہیں، آیت مبالغہ بھی بیان کریں گے اور وہ حدیث بھی جسے آپ پیش کر رہے ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ آیت مبالغہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، 61، اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تشریح میں آئی ہے وہ 2404 نمبر 2404 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ آپ ہمیں بتائیں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں یا صحیح مسلم کی اس حدیث میں ان دونوں نصوص میں کہیں کوئی ایسی بات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مبالغہ ہوا تھا، جس کا مطلب ہو کہ بیویوں کو چھوڑ کر بیٹی اور داماد کو اور نواسوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے؟ ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین۔ مرزا صاحب اگر آپ سچے ہیں تو اس آیت سے یا اس حدیث سے ہمیں دکھائیں۔ رہ کی بات کہ اس آیت میں کیا ہے، وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آیت نمبر 60 جو اس سے پچھلی آیت ہے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے نبی حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ اس حوالے سے بالکل بھی شبہ نہ کریں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر آپ سے کوئی شخص اس حوالے سے جھگڑا کرتا ہے، پھر بھی تکرار کرتا ہے، دلائل دیکھنے کے بعد بھی ہٹ درمی پر اتر آتا ہے، تو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس جو وحی آ گئی اس کے بعد بھی آپ سے کوئی اس حوالے سے جھگڑا کرتا ہے تو فقل آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تعالوا تم آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو بھی تمہارے بیٹوں کو بھی، ونساءنا ونساءکم، تمہاری عورتوں کو اپنی عورتوں کو بھی بلاتے ہیں تمہاری عورتوں کو بھی بلاتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے آپ کو بھی لے کر آتے ہیں میدان میں، تمہیں بھی بلاتے ہیں کہ تم بھی لے کر آؤ اپنے آپ کو، ثم نبتہل، پھر ہم مبالغہ کر لیتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کر لیں گے، سارے ہی اس پر آمین کہیں گے، سارے ہی دعا کریں گے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جائے، تو پھر اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ یہ آیت ہے۔ اب اس آیت میں کہیں ہے کہ مبالغے میں آپ گئے تھے یا ایسا ہوا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعلیم دی ہے کہ اگر یہ ایسا کریں تو آپ آگے سے انہیں یہ دعوت دیں، آپ انہیں چیلنج دیں۔ قبول تو انہوں نے کرنا ہی نہیں تھا، قبول نہیں کیا انہوں نے، یہ چیلنج دینا تھا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ وہ جھوٹے ہیں اور خفت کا سامنا انہیں کرنا پڑے، اور یہ چیلنج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا انہوں نے قبول نہیں کیا، یہ تو ان کا مسئلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ دیا تھا کہ اے نبی آپ چیلنج دے دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج دے دیا۔ اب جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، یہ صحیح مسلم میں جو 2404 نمبر حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں جو مباہلہ کے حوالے سے ہم پہلے وہ پڑھتے ہیں، باقی تفصیلات ہم انشاءاللہ فضائل معاویہ والے چیپٹر میں لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے۔ ولما نازلت هذه الآیہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں چیلنج دے دیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو بھی بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، یعنی ہم دعوت دیتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اگر ہم مبالغہ کریں۔ اتنے الفاظ ہیں کہ اپنے بیٹوں کو بھی ہم لے کر آتے ہیں میدان میں، تم اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آؤ۔ تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین، جب یہ آیت نازل ہوئی، جب مبالغہ ہوا ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ چیلنج دے دیجئے، تو چیلنج انہیں دینے سے پہلے آیت ابھی نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابھی آگے صحابہ تک جانی ہے، پھر آگے پہنچنی ہے کفار تک، یہودیوں تک، نصرانیوں تک، جو بھی دشمنان اسلام ہیں ان تک پہنچنی ہے۔ اس سے پہلے ہی آیت نازل ہوتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا، فقال فرمایا، دعا کی، اللہم اے اللہ، ہؤلاء اہلی، اللہم اے میرے اللہ، میں دعا کرتا ہوں
हाउलाई अहली, मेरे घर वाले तो यही हैं, इन्हें मेरा अहल बना दे। दरअसल नूह अलैहिस्सलाम की अगर वो जो स्टोरी है कुरान ने बयान की है कि जब उनका बेटा डूबने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम तड़प उठे, दुआ कर दी कि इन्न इब्नी मिन अहली, मेरे अल्लाह मेरा बेटा तो मेरा अहल है, तो तूने वादा किया था तेरे अहल को बचाऊंगा, तो मेरा बेटा मेरा अहल है, मेरे अहल में से है, इसे बचा ले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसके अमल ठीक नहीं है, ये मुशरिक है और मुशरिक आपका अहल नहीं बन सकता। तो दरअसल बेटा असल में अहल होता है। और कुरान की आयत में भी ये था कि नदु अबनाअना व अबनाकुम, अपने बेटों को बुलाते हैं हम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो बेटा था नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चैलेंज देना था कुफार को, दुश्मनान इस्लाम को, कि अपने बेटों को लेकर आओ, मैं भी अपने बेटों को लेकर आता हूँ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा था नहीं, फौत हो गए सारे बचपन में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इनको मेरा बेटा बना दे, ये मेरे बेटे के मकाम पर आ जाएं, अगरचे हकीकी बेटे नहीं हैं, जैसे कुरान ने कहा है सूरह अहज़ाब में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, यानी आपकी कोई नरीना औलाद हुई नहीं, यानी वो जवान नहीं हुई, फौत हो गए बचपन में ही। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। उस वक़्त औलाद फौत हो चुकी थी, यानी जो नरीना औलाद थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो बेटे थे फौत हो चुके थे। जब बेटे थे नहीं, कुरान ने कहा कि आप कुफार को चैलेंज दें कि बेटों को लेकर आएँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हसन हुसैन को बुलाया। अगरचे बेटे नहीं हैं, ये नवासे हैं, और नबी ज़ाहिर है कि जो नसब चलता है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह चलेगा कि बेटों के बेटे हों, बेटों के बेटे पोते, उनको बेटे कहा जाता है। तो बेटी के बेटे नवासे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ये मेरे अहल हैं, तो मेरे बेटों की जगह मेरे नवासों को कबूल फरमा ले, और मेरे इस चैलेंज में मेरे नवासे आ जाएं बेटों की जगह पर। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली, ऐ अल्लाह इनको मेरा अहल बना दे। ऐसे होगा अल्लाहुम्मा जअल हाउलाई अहली, ऐ अल्लाह इजाल महजूफ होगा, क्योंकि दुआ कर रहे हैं, जाहिर है दुआया कलिमात, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह तो इन्हें मेरा अहल बना दे। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो दुआ कबूल कर ली, क्योंकि सूरह अहज़ाब की रोशनी में अगर आप पढ़ें कुरान करीम में, तो वहाँ सियाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात का जिक्र है और उन्हें अहले बैत कहा गया है। कुरान करीम में सूरह अहज़ाब में जहाँ अहले बैत का तज़किरा है और उनकी ततहीर का तज़किरा है, जिसे रवाफ़िज़ उछालते हैं, वहाँ दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का तज़किरा है। कुरान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अहले बैत कहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इन्हें भी मेरे अहल में शामिल फरमा दे। जब ये अहल में आ जाएंगे तो फिर ये नवासे जो हैं ये बेटों की जगह शुमार होंगे, तो फिर मैं जब चैलेंज करूँगा तो उसको पूरा भी कर सकूँगा कि तुम अपने बेटों को लेकर आओ। अल्लाह ने इन्हें मेरे बेटे करार दिया, ये मेरे अहल बन गए हैं, लिहाजा मैं इन्हें लेकर आ जाऊँगा। ये असल थी मिर्ज़ा साहब आयत मुबाहला। सही मुस्लिम की हदीस में इसीलिए निसा का वो लफ्ज़ है ही नहीं यहाँ पर। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक वो फरमाते हैं कि जब ये आयत का टुकड़ा नाजिल हुआ, फ़कुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाकुम, इसकी तफसीर में वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों को बुला लिया और अपनी बेटी को और अपने दामाद को बुला लिया। लेके जाने का तो मिर्ज़ा साहब कहीं जिक्र ही नहीं है ना कि आप मुबाले के लिए गए हों। पहली बात है किसी ने मुबाले का चैलेंज कबूल किया हो, किसी की हिम्मत और जुर्रत ही नहीं हुई। और मिर्ज़ा साहब आज हम जैसे गुनाहगारों का आप चैलेंज कबूल नहीं कर पा रहे, आपको पता है कि आपके गले पड़ जाएगा, दुनिया के सामने आप इबरत का निशान बन जाएंगे, आप कबूल नहीं कर रहे। हमारे जैसे गुनाहगारों का चैलेंज ये मुबाहला, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैलेंज किसने कबूल करना था? उन्हें पता था। इसलिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर वो मुबाले के लिए आ जाते फिर ना उनका अहल में कोई बचता, ना घर वाला कोई बचता, ना बाल बचता। इसलिए वो आए ही नहीं, डर गए, दबक गए, बिल्कुल किसी ने चैलेंज कबूल ही नहीं किया है। ये हालत है मिर्ज़ा साहब आपकी, और आप दूसरों पर झूठा हंसते हैं, कह के लगाते हैं जी बीवियों को लेकर नहीं गए जी, इनकी जनाब डॉक्टराइन फेल होगी। मिर्ज़ा साहब आपको अपने आप पर हंसना चाहिए कि आपकी इल्मी हालत क्या है और आप बैठकर लोगों पर हंसते हैं। अब मैं यहाँ अर्ज़ करूँ कि इस हदीस के, ये जो सही मुस्लिम की 2404 नंबर हदीस है, इसके इब्तदाई टुकड़े को सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ पेश करने की कोशिश की जाती है।
साद रज़ी अल्लाह अन्हु को सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोई बात कही, उसका तज़किरा हम पहले स्पेशल पूरे वीडियो क्लिप में कर चुके हैं। वो सारी बात मैं दोबारा नहीं छेड़ूंगा, वरना फिर आधा घंटा यहाँ लग जाएगा। चूँकि एक बात हो चुकी है और तफसीलन हो चुकी है, हम उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे इस तरह। हम स्पेशल क्लिप अपलोड कर चुके हैं बहुत अरसा पहले। अल्लाह तबारक व तआला ने उस क्लिप की वजह से भी बहुत से बेशुमार लोगों को हिदायत नसीब फरमाई है। उस क्लिप का नाम है, उस क्लिप को आप यूट्यूब पे जाके या आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, इस्लाम मीडिया लिख लें और आगे आप लिख लें कि क्या लफ्ज़ सब का क्या माना है। लफ्ज़ सब इतना लिखें और साथ इस्लाम मीडिया लिख लें तो इंशाल्लाह हमारा क्लिप खुल जाएगा और आपको हकीकत मालूम हो जाएगी कि मिर्ज़ा साहब किस तरह धोखा देते हैं। दूसरा क्लिप इस हवाले से हमारा है जिस पे जुज़वी हवाले से इस हदीस पर भी बात की गई है, जो अल्फाज जिनको बुनियाद बनाया जाता है एतराज़ की सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर। वो क्लिप है, क्या सहाबा गाली देते थे। आप लिखें क्या सहाबा गाली देते थे, आप गूगल पे लिखें, यूट्यूब पे लिखें, साथ में इस्लाम मीडिया लिख दें, इंशाल्लाह क्लिप खुल जाएगा। ये क्लिप भी बहुत सारे लोगों की हिदायत का सबब बना है अल्लाह के फजल व करम से। तो हमने वहाँ इस हदीस की सारी शरह कर दी है। वो जो अल्फाज महल एतराज़ आप बताते हैं ना कि वो अल्फाज हैं और ये जनाब इस हदीस को पेश नहीं कर सकते, मिर्ज़ा साहब वो भी आपके गाटे फिट होती है। आप लोगों को कहते हैं ना कि हदीस आपके गाटे फिट होगी, ये हमारे गाटे नहीं, आपके गाटे फिट हो चुकी है अल्लाह के फजल से। इसलिए ये जो आप कहते हैं ना गाटे फिट होने वाली बात, ये बात भी आपके गाटे फिट होती है, क्योंकि सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक हदीस मौजूद है। हम पहले कई दफ़ा इशारतन और कई दफ़ा तफसीलन बयान कर चुके हैं। सही बुखारी में 7305 नंबर हदीस है। उसमें सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के तकरार और उनके इख्तलाफ और उनके झगड़े का जिक्र है। उसमें अल्फाज क्या हैं, इस्तब्बा, जिन अल्फाज को आप बुनियाद बनाते हैं ना कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आप सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ए साद आप गलत क्यों नहीं कहते, हम तो ये तर्जमा करते हैं ना। आप कहते हैं इसका माना लानत क्यों नहीं करते, गाली गलोच क्यों नहीं करते, नौजुबिल्लाह। तो हम कहते हैं कि वही तर्जमा आप यहाँ लाकर कर देना। सही बुखारी की 7305 नंबर जो हदीस है उसमें अली और अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का आपस में सब करना, इस्तब्बा, उन्होंने एक दूसरे को सब किया। करें माना लानत करते एक दूसरे को करते रहे, करें माना गाली गलोच करते रहे, नौजुबिल्लाह। नहीं ना, एक इख्तलाफ था, उस इख्तलाफ में एक दूसरे को गलत कहते रहे कि नहीं आप नहीं सही, मैं सही हूँ। इसको लफ्ज़ सब से यहाँ सही बुखारी की 7305 नंबर में सब के लफ्ज़ से इसको बयान किया गया। और बिल्कुल यही अल्फाज सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब बोले तो आप कहते हैं कि उन्होंने साद रज़ी अल्लाह अन्हु को लानत करने का हुक्म दिया था, नऊज़ुबिल्लाह। और फिर झूठी सच्ची जो रवायतें इकट्ठी करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उसमें झूठी रवायतें ठोंसते हैं और फिर लोग समझते हैं कि शायद ये तो असल यही माना है। तो इस बारे में हम तफसील के साथ, हमारा लेक्चर नंबर 10 है, गालिबन 10 नंबर है कि क्या सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना अली को गालियाँ दिलवाते थे, लानत करवाते थे। ये पूरा लेक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1 घंटे के करीब। ये अहबाब सुन सकते हैं इंशाल्लाह। हर किस्म के जो वसाविस हैं, शैतानी वसाविस, वो अल्लाह के फजल व करम से रफ़ा हो जाएंगे। दूसरी बात, आप कहते हैं कि ये इनके गाटे फिट होती हैं, ये हदीस बयान ही नहीं कर सकते। यही मिर्ज़ा साहब आपने कहा कि सही मुस्लिम की ये जो हदीस है 2404 नंबर, ये बयान नहीं कर सकते। मिर्ज़ा साहब हमने तो बयान की हुई है। ये आपका ये एतराज़ तब बनता जब हमने इस पर बात ना की होती। अल्लाह के फजल से कई साल पहले का वो हमारा जो है वीडियो मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है और उसकी तशरीह भी हम कर चुके हैं। फिर आप क्यों कहते हैं कि इनके गाटे फिट होती, बयान ही नहीं करते? हम तो बयान करते हैं। उससे भी अगली बात यह है कि मिर्ज़ा साहब जो किताबें आप पढ़ते हैं, अरबी ज़ुबान से तो आप नावाकिफ़ हैं, तर्जमा आप कर ही नहीं सकते, तो जाहिर है कि आप तर्जमा शुदा किताबें, मुतरजम किताबें लेते हैं, जो आपके सामने भी पढ़ी होती हैं। कुछ मुतरजम किताबें वो भी अहले हदीस में, अक्सरियत ने अहले हदीस उलमा ने, या फिर बरेलवी ये देवबंदी उलमा होंगे वो भी अहले सुन्नत हैं, तो वो भी अहले सुन्नत की तर्जमा करदा किताबें हैं ना। ये दारुस्सलाम की पढ़ते हैं या दीगर किताबें हैं, तो अहले सुन्नत की तर्जमा करदा किताबें हैं, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि ये हदीस सुना नहीं सकते। आप तक तो उन्होंने पहुंचाई है ना तर्जमा करके। इसहाक जालवी साहब ने तो तर्जमा किया नहीं किसी हदीस की किताब का, मौदूदी साहब ने तो कोई तर्जमा किया नहीं किसी किताब का। आपको किसने पहुंचाई ये हदीस? तो ये झूठ बोलना आप छोड़ दें कि ये हदीसें छुपाते हैं या बयान नहीं कर सकते। ये हदीसें बयान उन्हीं अहले सुन्नत ने की हैं जिनका तर्जमा पढ़ के आज आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि वो बयान ही नहीं कर सकते। बयान की हुई हैं मिर्ज़ा साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं अवाम, वो घास नहीं खाते,
وہ اللہ کے فضل سے سمجھ رہے ہیں آپ کی خیانتوں کو اور آپ کی جہالتوں کو، اور جو آپ جواب نہیں دے پا رہے نا کسی بات کا، اللہ کے فضل سے یہ تو پورا آپ کے گاٹے فٹ ہو گیا سارا معاملہ۔